Welcome to my channel Kimega Chemistry Classes. Today we are going to start a new chapter, that is hydrocarbons, right? So hydrocarbons are the important source of energy. This is the first starting line of NCERT chapter. This is the first line that is written when you open your NCERT book of class 11. Hydrocarbon is a term that is self-explanatory, which means compounds of carbon and hydrogen, right? So hydrocarbons play important role, as you can see. Compounds of carbon and hydrogen, and they are the foundation of organic chemistry, and they serve as a fuel, solvents, polymers, dyes and medicines, right? So you must be familiar with the terms, that is LPG, जो कि हम घर में यूज़ की जाती है, that is domestic fuel, and CNG. This is LPG is what? This is liquefied petroleum gas, and CNG is a compressed natural gas, right? So there is another term also, that is LNG, that is liquefied natural gas, right? So this petrol, diesel, kerosene oil, they are obtained from the friction distillation of petroleum under earth crust. Coal gas is also obtained by distillation of coal. Natural gas is found in upper strata during the drilling of oil wells. Hydrocarbon are also used in manufacturing of polymers like polythene, polypropylene, polystyrene. Higher hydrocarbons are used as solvents for paints. So on the basis of that, we are classify hydrocarbons, that is hydrocarbons on the basis of कार्बन कार्बन के बॉन्ड के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करेंगे हाइड्रोकार्बन को इन 3 टाइप्स, दैट इज सैचुरेटेड, unsaturated and aromatic one, right? So first we consider saturated. What happen in saturated? Hydrocarbons contain कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड. इसमें कार्बन कार्बन का या फिर कार्बन हाइड्रोजन का, लेकिन बॉन्ड प्रेजेंट कौन सा होता है? सिंगल बॉन्ड, राइट? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है? कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स हो सकते हैं, दैट कंटेन डबल बॉन्ड एंड दैट कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें दोनों बॉन्ड भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं और ट्रिपल भी हो सकते हैं. तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एक स्पेशल टाइप का साइक्लिक कंपाउंड्स होता है, जिसको हम मॉडल वगैरह कंस्ट्रक्ट करने में भी यूज़ करते हैं. नाउ इज अल्केन्स, फ्रॉम देयर नेम अल्केन्स, राइट? Alkenes are the simple organic compound that is made of carbon and hydrogen. They have a journal formula. Alkanes, alkenes, alkynes, इन तीनों के ही journal formulas होते हैं. जैसे alkenes का है CN, where N is 1, 2, 3, etc. Right? So the carbon atoms in their molecule are bonded to each other by single covalent bond. In this single covalent bond is there, and the carbon skeleton of an alkanes is fully saturated with hydrocarbon. जैसे भी हमने समझा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड से ही प्रेजेंट होता है, राइट? अल्केन्स कंटेन स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन and carbon hydrogen bonds. The class of hydrocarbon are relatively chemically inert, so they are sometimes referred to as a paraffin. First 3 members, अगर हम अल्केन्स की बात करते हैं, फर्स्ट 3 मेंबर्स कौन से होते हैं? फर्स्ट 3 मेंबर्स आर मीथेन, ईथेन एंड प्रोपेन, राइट? सो मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, ईथेन का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, एंड प्रोपेन का स्ट्रक्चर रहेगा
इस तरह से. This is methane, ethane and propane, right? So first we understand what is the structure of methane. Structure of methane. According to VSEPR theory, methane has a tetrahedral structure like this. Methane has a tetrahedral structure in which carbon atoms lies at the center and the four hydrogen, जितने भी फोर कॉर्नर्स होंगे इसके वो ऑक्युपाइड होंगे हाइड्रोजन से, और इनका एक टेट्राहेड्रल एंगल होगा HCH बॉन्ड का, दैट इज 109.5 डिग्री. ठीक है. In alkane, tetrahedral are joined together in carbon-carbon and carbon-hydrogen bond. That is of length like 154 picometer and 112 picometer, right? So when we are discussing about nomenclature, as you know, first three alkane, that is methane, this is methane, ethane and propane, they have one structure, but higher alkanes have more than one structure. They have only one structure. Higher alkanes have more structure. इसको हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से. अभी हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे, दैट इज ऑफ ब्यूटेन, राइट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन. This is the butane, right? 1, 2, 3 and 4. This is the first structure. And next we write another structure of 4 carbon with 4 carbon atoms, that is this is 2-methyl propane. This two structure, this is, इसको हम सेकेंड नंबर नाम देते हैं. स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड, they possess the same molecular formula, that is C4H10. they possess the molecular formula इनका सेम है, बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है इनके बॉइलिंग पॉइंट में और अदर प्रॉपर्टीज़ में. हम एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे हमने देखा C4H10 के दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, वैसे ही हम नेक्स्ट लेते हैं C5H12. C5H12 में क्या आता है, पहले तो एक सिंपल पेंटेन बनेगा. You can write hydrogen, right? I'm not writing here. Next is, we can also write like this. Right, this is what? This is 2-methyl butane. इसको हम थर्ड नंबर, इसको हम फोर्थ नंबर देंगे. एंड लास्ट वन इज fifth number. This is 2,2-dimethyl propane. As you can see, first two structures में molecular formula सेम है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. वैसे ही जो स्ट्रक्चर 3, 4, 5 हमने बनाया है पेंटेन का, उनका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. जैसे कि दे आर फर्स्ट एंड सेकेंड आर द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन एंड नेक्स्ट 3 आर द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, राइट. सो they have difference in property. This is due to difference in their structure. जैसे हमने C4 ब्यूटेन को हमने एक
सिंपल लाइन में लिखा, जब सारे कार्बन आइटम एक ही लाइन में अटैच थे, हमने उसका नाम दे दिया ब्यूटेन। जब हमने थोड़ी सी इसके चेंजेस की कि उसको हमने इस कार्बन को यहाँ अटैच कर दिया, इतने से उसका नाम चेंज हो गया, दैट इज 2-मिथाइल ब्यूटेन। सो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमर्स क्या होते हैं कि देयर डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर। they both contain C4H10, right, 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन, लेकिन इनके स्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से इनको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर आइसोमर्स। वैसे ही जैसे स्ट्रक्चर फर्स्ट है और स्ट्रक्चर थर्ड है, दैट इज ब्यूटेन एंड दैट इज पेंटेन, राइट। सो दे हैव कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम, लेकिन जो बाकी स्ट्रक्चर्स रिमेनिंग 3 स्ट्रक्चर्स हैं उनमें ब्रांच चेन है, उसमें सिंगल चेन है, इसमें ब्रांच चेन है। तो ऐसे स्ट्रक्चर आइसोमर जिसमें डिफरेंस आ रहा है चेन ऑफ कार्बन एटम्स को, उसको हम चेन आइसोमर्स कहते हैं, राइट। जैसे कि अभी हमने देखा कि कार्बन एटम्स अगर एक कंटिन्यूस चेन में अलाइन है तब उनका नेम डिफरेंट है, अगर हम उसको ब्रांच करते हैं तब उसका नेम डिफरेंस है। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे अटैच है उससे भी एक स्ट्रक्चर में फ़र्क पड़ रहा है, राइट। सो कार्बन एटम को हम नंबर देते हैं, जैसे कि वी यूजली से कार्बन एटम इज टर्म्ड एज प्राइमरी अगर वो फर्स्ट है, सेकेंड सेकेंडरी, थर्ड टर्शरी, फोर्थ क्वार्टरी। सो कार्बन एटम अटैच टू नो अदर कार्बन एटम एज अ मीथेन और टू ओनली वन कार्बन एटम एज इन ईथेन। इन ईथेन के स्ट्रक्चर में एज यू कैन सी दिस, इस कार्बन के साथ सिर्फ सेकेंड कार्बन अटैच है, 1 कार्बन ही अटैच है, इसके मीथेन में तो कोई भी अटैच नहीं है। अगर उसका सेकेंड अटैच है जैसे कि ईथेन में है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन एटम। टर्मिनल कार्बन एटम आर ऑलवेज प्राइमरी, जो टर्मिनल कार्बन एटम होगा वो हमेशा ही प्राइमरी होगा। कार्बन एटम अटैच टू 2 कार्बन एटम्स, जैसे कि अब हम आगे बात करेंगे, अगर 2 कार्बन से अटैच है तो हम उसको टर्शरी बोलेंगे। तो टर्शरी कार्बन इज अटैच टू 3 कार्बन एटम एंड नी और क्वार्टरी अटैच टू 4 कार्बन एटम। लाइक दिस वी कैन राइट 1 2 3 कि जैसे जैसे कार्बन अटैच है तो उस हिसाब से हम उनको 1 2 3 भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे हायर अल्केन्स बनते रहेंगे, जैसे जैसे कार्बन अटैच होते रहेंगे, जैसे जैसे कार्बन की चेन लंबी होती रहेगी तो वैसे ही उनके आइसोमर्स, उनके स्ट्रक्चर और बनने लग जाएंगे। जैसे कि हमने ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर बने, पेंटेन के 3 स्ट्रक्चर बने, तो उसी हिसाब से जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होंगे उसी हिसाब से ये इनकी स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आने लग जाएंगे। पहले हम IUPAC नेम लिखते थे, देन वी कैन डिस्कस व्हाट इज़ IUPAC नेम, ये आपको पता है, लेकिन हम एल्केन्स में थोड़ी इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें कैसे हम लिखते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, राइट। सो IUPAC नेम for a given structure, for any structure, is equally important to write the correct structure from the given IUPAC name. So first of all, the longest chain of carbon atom corresponding to parent alkane is written, then after numbering it the substituent are attached to correct carbon atom, and finally the valency of each carbon atom is satisfied by putting the correct number of hydrogen atom. I will give you one step. First of all, draw the chain. This is the way for drawing. इस तरह से पहले हमने कार्बन चेन को ड्रॉ किया, देन वी राइट 1 2 3 4 and 5, राइट। कार्बन चेन को ड्रॉ करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को, फिर उसकी नंबरिंग हमने प्रोवाइड करनी है कि क्या नंबर है, फिर हमने देखना है कि अटैच क्या इथाइल ग्रुप को, अगर हम कोई ग्रुप को अटैच करते हैं यहाँ पे, जैसे एक समझने के लिए यहाँ हमने मीथेन किया, यहाँ इथाइल ग्रुप भी करते हैं अटैच, राइट दिस। सो जब इथाइल ग्रुप कार्बन थर्ड पे अटैच किया और 2 मिथाइल ग्रुप हमने सेकंड कार्बन पे अटैच किए, तो उसको सेटिस्फाई, वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हर कार्बन एटम के हम उसके अकॉर्डिंग हम एक नंबर पुट करेंगे, ठीक है। वी राइट हियर all the hydrogens like CH3,
सिंगल इसकी वैलेंसी को हम कंप्लीट कर रहे हैं. H, there is no H, CH, CH2 and CH3 इस अकॉर्डिंग टू दिस उनकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई है कि जो कि कार्बन इज ऑलवेज द टेट्रावेलेंट, वो 4 टाइम्स अटैच होता है, 4 कॉर्नर से अटैच होता है. हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसको हम नेमिंग करके क्लियर करते हैं, राइट. जैसे कि दिस इज वन एग्जाम्पल जिसमें हम IUPAC को जस्ट रिकॉल करेंगे. एज यू ऑल नो, वी नो व्हाट इज IUPAC एंड नेमिंग, दैट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी थिंग. मैं आपको किसी वीडियो में इस बारे में एक्सप्लेन भी कर दूँगी. दिस इज लाइक दिस, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू काउंट द 6. दिस इज 6, ठीक है, हेक्सेन. इसमें मिथाइल ग्रुप अटैच है. यहाँ सेकेंड पोजीशन ऑफ नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, दैट इज हेक्सेन. एंड दिस इज 2 डाईमिथाइल, 2,5 डाईमिथाइल, राइट. 2 and 5th पोजीशन पे, सो 2,5 डाईमिथाइल हेक्सेन. This is the way of writing a scientific or IUPAC name of any structure, right? So in next video we will cover our further topic like preparation of alkenes, alkenes and alkynes and so on. So thank you.